بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے سنستھا۔ کیا سنستھا؟ تو اس کو اردو میں تنظیم بھی کہتے ہیں، انجمن بھی کہتے ہیں اور ادارہ بھی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سنستھا کو اردو میں تنظیم بھی کہتے ہیں، انجمن بھی کہتے ہیں اور ادارہ بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 272 پہ ہے سنسد کے سدسیہ۔ سنسد کے سدسیہ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں اراکین پارلیمنٹ۔ اراکین پارلیمنٹ۔ اب سمجھیے، سنسد کو اردو میں کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ کیا بولیں گے؟ پارلیمنٹ۔ سنسد کو اردو میں کہتے ہیں پارلیمنٹ، اور سدس کو اردو میں کہتے ہیں رکن، ممبر۔ تو ممبر کو اچھی اردو میں کہتے ہیں رکن، اور رکن کی جمع ہے اراکین، یعنی بہت سارے ممبر ہوں تو اسے کہتے ہیں اراکین۔ رکن کی جمع اراکین۔ تو اراکین پارلیمنٹ، سنسد کے سدسیہ یعنی پارلیمنٹ کے ممبر، پارلیمنٹ کے اراکین، اراکین پارلیمنٹ۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 273 پہ ہے لوک سبھا کے سدسیہ۔ لوک سبھا کے سدسیہ۔ اب دیکھیے، اس کو اردو میں کہتے ہیں اراکین لوک سبھا۔ اراکین لوک سبھا یعنی لوک سبھا کا استعمال لوک سبھا ہوا ہے اردو میں، اور سدس کے معنی رکن، ممبر۔ تو اور رکن کی جمع ہے اراکین۔ تو لوک سبھا کے سدسیہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں اراکین لوک سبھا۔ اراکین لوک سبھا یا لوک سبھا کے اراکین۔ لوک سبھا کے اراکین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اراکین لوک سبھا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ چلیے آگے، سوال نمبر 274 پہ ہے قانون کا شاسن۔ قانون کا شاسن۔ اب دیکھیے، قانون کو اردو میں قانون کہتے ہیں، اور شاسن، شاسن کو اردو میں حکمرانی کہتے ہیں۔ کیا؟ حکمرانی، حکومت۔ تو قانون کا شاسن، اس کو اردو میں کہیں گے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی یعنی شاسن کے معنی حکومت، شاسن کے معنی حکومت، حکمرانی۔ تو قانون کا شاسن یعنی قانون کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی۔ پھر آگے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ اور ایک بات جو بہت ہی اہم ہے آپ سب کے لیے، بہت ہی فائدے والی بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ ضرور بھی ضرور اس گروپ سے جوائن ہو جائیے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر دن کا، ہر روز کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا۔ ہاں، ہر دن کا PDF بالکل فری میں آپ کو مل جائے گا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس گروپ سے ضرور بھی ضرور جوائن ہو جائیے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 275 پہ ہے کیندر شاست پردیش۔ کیندر شاست پردیش، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں یونین کے زیر انتظام علاقے۔ یونین کے زیر انتظام علاقے، کیندر شاست پردیش۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے یونین کے زیر انتظام علاقے۔ یونین کے زیر انتظام علاقے۔ سوال نمبر 276 پہ ہے گرہ منتری۔ گرہ منتری، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں وزیر داخلہ۔ کیا بولیں گے؟ وزیر داخلہ۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں کہ بہت سے لوگ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب نوٹیفیکیشن آئے گا تب ہم تیاری کریں گے۔ نہیں، یہ آپ اس خام خیالی میں نہیں رہیے، بلکہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ آپ کو تیاری کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے عقل مندی اور دانش مندی یہ ہے کہ آپ ابھی سے
सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आप सब के लिए एक तरीका से फ्री हिट का मौका है, बिल्कुल फ्री में ये मौका आपको मिल गया है, वरना ये मौका बार बार नहीं आता है। अगर इस बार आप चूक गए तो फिर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर हाल में आप इस मौका को नहीं छोड़िए, बल्कि इस मौका का फायदा उठा लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आगे। 278 पे है विदेश मंत्री। क्या है विदेश मंत्री? तो इसको उर्दू में कहते हैं वजीर खारजा। क्या बोलेंगे? वजीर खारजा। विदेश यानी खारजा, मंत्री यानी वजीर, यानी मंत्री को वजीर कहते हैं और विदेश को खारजा। तो विदेश मंत्री, खारजा, वजीर खारजा। चलिए आगे। सवाल नंबर 279 पे है रेल मंत्री। रेल मंत्री, तो इसको उर्दू में कहते हैं वजीर रेलवे। वजीर रेलवे, वजीर रेलवे, यानी रेल को रेलवे लिख दिया गया और मंत्री के माना उर्दू में वजीर। तो रेल मंत्री, वजीर रेलवे, वजीर रेलवे। चलिए आगे। सवाल नंबर 280 पे है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इसको उर्दू में कहते हैं कौमी सलामती के मुशीर। कौमी सलामती के मुशीर यानी राष्ट्रीय। राष्ट्रीय को उर्दू में कहते हैं कौमी। क्या बोलेंगे? कौमी, राष्ट्रीय, कौमी, राष्ट्रीय, कौमी। सुरक्षा, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। सुरक्षा, सलामती, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। और सलाहकार, इसको उर्दू में कहते हैं मुशीर। सलाहकार यानी मुशीर, मशवरा देने वाला, मशवरा देने वाला। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसको उर्दू में कहते हैं कौमी सलामती के मुशीर। कौमी सलामती के मुशीर। चलिए आगे। 281 पे है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, तो इसको उर्दू में कहते हैं काबीना सेक्रेटरी। काबीना सेक्रेटरी यानी कैबिनेट को उर्दू में कहते हैं काबीना। क्या बोलेंगे? काबीना। कैबिनेट को उर्दू में कहते हैं काबीना और सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी। सचिव को उर्दू में कहते हैं सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सचिव, इसको उर्दू में कहते हैं काबीना सेक्रेटरी। काबीना सेक्रेटरी। चलिए आगे। 282 पे है प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव। तो इसको उर्दू में कहेंगे वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधानमंत्री को कहते हैं वजीर आजम। जैसे कि अभी मुल्क अजीज हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं तभी इसको कहेंगे वजीर आजम उर्दू के अंदर। और एक लफ्ज है मुख्यमंत्री, उसको उर्दू में कहते हैं वजीर आला। जैसे कि अभी बिहार के जो वजीर आला कौन है? नीतीश कुमार है, जिसको इंग्लिश में सीएम कहते हैं और हिंदी में मुख्यमंत्री कहते हैं और उर्दू में वजीर आला कहते हैं। उसी तरीका से मोदी जी को पीएम कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री और उर्दू में कहते हैं वजीर आजम। तो प्रधानमंत्री को उर्दू में कहते हैं वजीर आजम और प्रधान सचिव, प्रधान सचिव को, सचिव के माना इससे पहले आपने पढ़ा कि सचिव के माना सेक्रेटरी उर्दू के अंदर, तो प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी, समझ गए? तो प्रधानमंत्री, प्रधान सचिव, इसको उर्दू में कहते हैं वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चलिए आगे। सवाल नंबर 283 पे है गृह सचिव। गृह सचिव, तो गृह के माना है होम। क्या? गृह, होम, घर।
गृह के माना है उर्दू में होम, और सचिव के माना है सेक्रेटरी। क्या? सेक्रेटरी। गृह के माना होम और सचिव के माना सेक्रेटरी, जिससे पहले भी आप पढ़े हैं। तो गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। जैसे कि अभी अमित शाह अभी हिंदुस्तान के क्या हैं? गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री को हिंदी में कहते हैं वजीर दाखिला, वजीर दाखिला। तो गृह सचिव, इसी तरीका से गृह सचिव है, तो गृह सचिव को उर्दू में कहते हैं होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी। 284 पे है वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव। तो इसको उर्दू में कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी। चलिए आगे, सवाल नंबर 285 पे, और ये आज का आखिरी सवाल है, रक्षा सचिव। क्या? रक्षा सचिव। तो रक्षा, रक्षा के माना तहफ्फुज, हिफाजत, दिफा, और सचिव के माना उर्दू में सेक्रेटरी। तो रक्षा सचिव, इसको उर्दू में कहेंगे सेक्रेटरी दिफा। क्या बोलेंगे? सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दिफा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप YouTube पे सर्च करें उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों में, साथियों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे सवाब की नीयत से इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और आखिर में जो सबसे अहम बात है जिसमें आपका बहुत ही फायदा होगा, कि डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जरूर भी जरूर उस ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि आपको हर दिन का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसलिए आप हर हाल में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एक बात मैं आपसे कह दूं कि बहुत से लोग हैं जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके जहन में और दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जाके हम तैयारी करेंगे। तो याद रखिए, उस वक्त में आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, बल्कि वो एग्जाम धरफर में होगा, अचानक में होगा। इसलिए अक्लमंदी और दानिशमंदी यही है कि आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।